Good morning, students. Today we are going to start our next chapter. Name of the chapter is Moving Charges and Magnetism. We used to say, we used to say, two material bodies attract each other due to their mass. Two material bodies, we used to say, two material bodies attract each other due to their mass, or not? दो मटेरियल बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं अपने मास के चलते. दे अप्लाई ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ईच अदर, राइट. इसको जरा दूसरे तरीके से ऐसे कहना, interaction between two material bodies takes place. Interaction between two material bodies takes place due to a basic position, mass. दो मटेरियल बॉडीज के बीच में इंटरेक्शन होता है. दो मटेरियल बॉडी को जब पास लाया जाता है तो दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है. एंड वी सी दैट वेरी, वी ऑब्जर्व दैट वेरी इंटरेक्शन इन टर्म ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम. It mean that in term of gravitation, in term of a force of attraction between them. Name of that very force is gravitational force, and basic responsible factor for their attraction is their masses. Means they possess a basic property, a basic possession, mass, due to which they attract each other, right. दूसरे टर्म में यह भी कह सकते हैं कि one massive body, a body having mass, creates gravitational field, and if we place another mass in that very field, then that experiences a force. मतलब पहले मास ने अपना फील्ड बनाया, उस फील्ड में दूसरा मास आया, वह फोर्स अट्रैक्ट किया. दूसरे मास ने अपना फील्ड बनाया, उसमें पहला मास आया, उसने फोर्स अट्रैक्ट किया. इट मीन दैट यू कैन से हियर इंटरेक्शन बिटवीन टू मासेस, इंटरेक्शन बिटवीन टू फील्ड्स takes place, and due to which as a result we are observing an interaction in the form of attraction. It means that we can say two material bodies or interaction between two material bodies takes place, which we observe in term of attraction due to a basic property, their masses, and reason behind this is creation of gravitational field. In the similar manner, in case of two charged bodies, again we used to say when two charged bodies interact each other, then again there is creation of force. We observe that very force either in term of repulsion and attraction, and this very property is shown by two charged bodies due to a basic position, charge. दो चार्ज बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं, मतलब जब दोनों में इंटरेक्शन होता है तो वह अपीयर होता है इन द फॉर्म ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन ड्यू टू अ बेसिक प्रॉपर्टी, चार्ज, राइट. और उसके पीछे रीजन हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि जो है एक चार्ज ने अपना एक फील्ड क्रिएट किया और उस फील्ड में जब दूसरा चार्ज आया तो वह फोर्स एक्सपीरियंस किया. या फिर नहीं तो कह दो एक चार्ज ने अपना फील्ड क्रिएट किया, दूसरा चार्ज आया, वह फोर्स एक्सपीरियंस किया. दूसरा चार्ज ने अपना फील्ड क्रिएट किया, उसमें पहला चार्ज आया, वह फोर्स एक्सपीरियंस किया. इट मीन दैट अगेन हेयर इज इंटरेक्शन बिटवीन टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स इज टेकिंग प्लेस. नाउ कम ओवर थर्ड एग्जाम्पल. बिटवीन टू पोल्स ऑफ मैग्नेट्स, between two poles of magnets, when interaction between two magnets takes place, then we observe that very interaction in term of either attraction or repulsion between them, right. What is the basic cause? Then basic cause is possession of poles or possession of magnetism. Magnetism क्या कहा जाता है, then a properties shown by a magnet is known as magnetism, राइट. तो यह जो है दो मैग्नेट का जो है पोल्स के बीच में आइदर अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है ड्यू टू अ बेसिक प्रॉपर्टी, यू कैन से मैग्नेटिज्म और पोल्स.
इसको ऐसे भी कह सकते हैं ड्यू टू क्रिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जैसे हर एक चार्ड बॉडी, हर एक मैसिव बॉडी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड बनाता है, इन द सिमिलर मैनर हर एक पोल्स अपना एक जो है फील्ड बनाता है, एंड दैट वेरी फील्ड इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। एंड इफ एनी अनदर pole, if any another pole comes in that very field, then that experiences a force। तो एक पोल जो है अपना फील्ड बनाया, तो उसमें दूसरा पोल आया, वह फोर्स एक्सपीरियंस किया। दूसरा पोल अपना फील्ड बनाया, उसमें जब पहला मैग्नेट गया, पहला मैग्नेट का पोल गया, उसने फोर्स एक्सपीरियंस किया। इट मीन दैट रिस्पॉन्सिबल फैक्टर इज क्रिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक बात यहाँ पर याद रखना बाबू, positive charge is equivalent to north pole and south and negative charge is equivalent to south pole। तुमने यह पढ़ा है, पॉजिटिव चार्ज, field due to a positive charge is always away, likely in the same way field due to a north pole is always away from the pole। shape of field lines due to a positive charge is always from the charge। shape of magnetic field lines due to a magnetic north pole is ऑलवेज अवे। और जस्ट चार्ज में जो निगेटिव के साथ होता था, सिमिलर फिनोमेना इज शोन बाय साउथ पोल, राइट। अभी तुमने यह कहा बाबू दो मासेस रहेंगे तो वह जो है अट्रैक्ट करेगा ड्यू टू बेसिक प्रॉपर्टी मास ड्यू टू क्रिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। दो चार्ड बॉडी जब इंटरेक्ट करेंगे तो वह अपियर होगा रिपल्सन और अट्रैक्शन के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्सन के फॉर्म में ड्यू टू अ बेसिक प्रॉपर्टी चार्ज, पोजीशन ऑफ चार्ज, और वह इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। दो मैग्नेट रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, एंड ड्यू टू बेसिक प्रॉपर्टी मैग्नेटिज्म इंटरेक्शन टेक्स प्लेस। क्वेश्चन इज दिस, व्हाट विल हैपन व्हेन चार्जेज विल बी इन मोशन, व्हेन चार्जेज विल बी मूविंग। जब दो मूविंग चार्ज रहेंगे, जब दो चार्ज बॉडीज रहेंगे और मोशन में रहेंगे, मीन्स व्हेन चार्जेज विल बी इन मोशन। और जब चार्ज मोशन में होता है तो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इट मीन दैट व्हेन देयर विल बी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए वायर, देन दैट इज योर मूविंग चार्ज। और दो मूविंग चार्ज रहेंगे, इसका मतलब जब दो करंट कैरिंग वायर रहेंगे, देन व्हाट विल हैपन, it mean that if in a region there will be two current carrying wires, what will happen? Will there any interaction between them? Then answer is yes, there will be interaction, and we observe that very interaction in term of attraction or repulsion। when attraction, when repulsion, we will discuss later, but there will be interaction, and we observe that very attraction in term of, if we observe that very interaction in term of either attraction or repulsion। क्वेश्चन है दिस कि इसमें कौन सा बेसिक प्रॉपर्टी वो पोजेस कर रहे हैं, देन वी यूज टू से दे आर पोजेसिंग मैग्नेटिज्म, दे आर पोजेसिंग मैग्नेटिज्म। तो कहोगे कि मैग्नेटिज्म तो मैग्नेट पोजेस करता है, यह भी पोजेस करता है। रियली जो है मैग्नेट जो पोजेस करता है, मैग्नेट जो मैग्नेटिज्म पोजेस करता है और यह जो मैग्नेटिज्म पोजेस करता है, यह दोनों में जो है ज़्यादा बेसिक जो है करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग वायर ही है, करंट कैरिंग वायर ही मैग्नेटिज्म पोजेस करता है। तो कह दो कि मैग्नेट कैसे पोजेस करता है, रियली जो है मैग्नेट जो है दैट इज अ स्पेशल केस ऑफ करंट कैरिंग वायर। मतलब मैग्नेट के अंदर में भी मूविंग चार्ज होता है और उसके चलते वह जो है मैग्नेटिज्म पोजेस करता है। इट मीन दैट मोर बेसिक फैक्ट और मोर बेसिक थिंग बिहाइंड मैग्नेटिज्म इज करंट कैरिंग वायर और मूविंग चार्ज। It means that when there will be two moving charge, then there will be interaction, and we observe that very interaction in term of either attraction or repulsion, and responsible factor or basic property due to which there is interaction is magnetism। तो वो कैसे, तो जैसे तुमने यह कहा मैग्नेटिक पोल मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, लाइकली इन द सेम वे अ करंट कैरिंग वायर क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। A current carrying wire creates magnetic field around itself। तो अगर दो करंट कैरिंग वायर है तो एक ने अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाया, उसमें दूसरा करंट कैरिंग वायर आया तो वह फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, दूसरे ने अपना फील्ड बनाया उसमें पहला जा रहा है तो यह फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। इट मीन दैट इंटरेक्शन इज टेकिंग
place. It means that due to creation of magnetic field due to a moving charge, due to a current carrying wire, behaves like a magnet. It shows magnetism. It creates magnetic field around itself. और इस बात को ऑलवेज याद रखना कि यही करंट कैरिंग वायर, यही मूविंग चार्ज जो है रिस्पॉन्सिबल है मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए। और जो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है वह इसका स्पेशल केस है। मैग्नेट के अंदर ढेर सारे मूविंग चार्ज मोशन में रहते हैं एंड ड्यू टू विच दे प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म। हाउ, कैसे, वी विल डिस्कस दिस वेरी थिंग इन डिटेल इन दिस वेरी चैप्टर, राइट। इस चैप्टर में हम लोग को इस चीज़ को डिटेल में पढ़ना है। We used to say regarding magnetic field, moving charges is more basic rather than magnet। मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया और जो है मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा बेसिक है क्योंकि मैग्नेट इज ए स्पेशल केस ऑफ मूविंग चार्ज, राइट। It means that we can say moving charge or current carrying wire creates magnetic field around itself, shows magnetism, behave like a magnet, right? A moving charge behaves like a magnet. But question is how? हाउ कैन वी से, यहाँ बोल तो दिए कि इंटरेक्शन होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, बट हाउ कैन वी से, कैसे हम लोग इसको दिखा सकते हैं कि अ मूविंग चार्ज बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, अ मूविंग चार्ज शोज मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी, अ मूविंग चार्ज क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। हाउ कैन वी से, राइट।